Hello everyone and welcome back to my channel. This is another sample question paper which we are going to discuss today. Sample question paper एक already मैं पहले भी discuss कर चुकी हूँ. So ये जो sample paper है ये 2023-24 year का है. Again prescribed by CBSE only. ठीक है, पेपर आपको पता है 3 घंटे का है और जो आपका पेपर होगा 60 मार्क्स का होगा. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग 24 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें से आपको 17 अटेम्प्ट करने हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1 जो है फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे इट इज ऑफ 1 मार्क. क्वेश्चन 1 है डिफाइन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेज. ठीक है, तो जब आप एक एंटिटी या एक ग्रुप दूसरे को मैसेज कन्वे करता है, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. और ये मैसेज कैसे कम्युनिकेट होता है? बाय साइन, सिंबल एक्सेट्रा. सो सेकंड पार्ट में आपको एमसीक्यू बेस्ड है. इनमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है. विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द maximum of numbers in a given range of cells. So it is maximum वाले numbers बताने हैं. So the answer is max. Third one is which of the following is a subtype of dramatic emotional personality disorder cluster B? It is C, histrionic personality disorder. Okay. Next one is which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in themselves? तो answer is intrinsic motivation. Then fifth part, it is a company that is the first stage of its operation. So it is startup. Sixth part, write the full form of UNEP. So it is United Nations Environment Program. मैं लिख देती हूँ United Nations Environment Program. Right? Now question 2. 7 में से 5 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. Which of the following is not a supermarket display technique? So loud music. और जब आप पेपर में आंसर लिखोगे तो आपको पूरा लिखना है. 2 का फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन बी एंड विद द फुल वर्ड. ऐसे लिखेंगे पेपर में. जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस. राइट. सेकेंड है which of the following is not the security measure of cash register? So right answer is leave the cash register open. तो ये सिक्योरिटी मेजर नहीं है, आपको नॉट बताना है. बाकी 3 जो हैं वो सिक्योरिटी मेजर हैं. नेवर लीव कैश, बी अलर्ट, ये सारे सिक्योरिटी मेजर हैं. आपको बताना है जो सिक्योरिटी मेजर नहीं है. थर्ड पार्ट, it is mandatory if management is going to fully meet its responsibility. So the answer is accurate record keeping is mandatory. Fourth, a milk float is a small BEV. What does BEV stands for? It is battery electric vehicle. Fifth, point of sale marketing is commonly known as point of purchase. Sixth, define customer centric. Customer centric का मतलब है कि ability to understand and meet the need of the customer. Ability to understand and also meet the needs of the customer. ठीक है.
सेवेंथ पार्ट, व्हाट डज B2B स्टैंड्स? तो B2B का मतलब है आपका बिजनेस टू बिजनेस। ये हमने डिटेल चैप्टर जब पढ़ा था, यूनिट 2 में है ये, सेशन 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे भी 7 क्वेश्चंस हैं और 6 करने हैं, और अगेन हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। Which email involves sending email solely to communicate a promotional message? For example, announcement of special offer or a catalog of product. So the answer is direct email marketing. इन चारों में से direct email marketing is the right answer. Right? Then comes your second part. It is, which one of the following is not the benefit of e-retailing to the customer? It is after sales difficulties. Third, which one of the following is the call center technology? So it is virtual call center technology. Fourth, CRM stands for customer relationship management. Fifth part, which of the following are not the principle of retail shop ability? So maximize clutter, ये रिस्पॉन्स प्रिंसिपल नहीं है रिटेल शॉपेबिलिटी का। सिक्स्थ इज, इट इज यूज विद द बैक ऑफिस सर्वर टू एंटर आइटम्स, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, अपडेट एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन essential for running the business. So answer is keyboard. Keyboard is used, right? Okay, सेवेंथ में लिस्ट एनी टू विजुअल डिस्प्ले टूल बॉक्स आइटम। आप बहुत सारी है, कोई भी दो मेंशन कर सकते हैं, जैसे सीजर, स्टेपलर, टू-साइडेड टेप, पिन्स एक्सेट्रा, ग्लू गन, बहुत सारी है, कोई दो कर दीजिए। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 6 में से 5 करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको बताना है, मॉनिटर है इसका आंसर, इज द स्क्रीन वेयर सेल स्टाफ व्यूज सेल इंफॉर्मेशन। सेकंड, चारों में से बताना है विच मार्केटिंग जनरेट्स न्यू प्रोडक्ट अवेयरनेस, ट्रायल्स एंड अल्टीमेट परचेज? इट इज पॉइंट ऑफ सेल। थर्ड, मेंशन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो इसका आंसर है बैलेंस हो गया, कलर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फोकल पॉइंट, सिंप्लिसिटी, कुछ भी आप इसमें दो लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। Which type of layout is used by the most modern keyboards? It is QWERTY layouts. Then fifth है, it is the mantra of any well-run business. Cash is king. Sixth, identify the concept that throw light on the point कि हर transaction के दो effects होते हैं, जैसे receiving and giving of the benefits. It is dual aspect concept, right? क्वेश्चन 5 में 6 में से आपको 5 करने हैं, एंड अगेन हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ गो फ्रूगल्स रिपोर्ट टूल? इट इज, चारों में से डिफिकल्ट टू यूज इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? तो चार आपको दिए, इनमें से 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है, जो नहीं है दैट इज materiality. That is materiality. Okay. Then which accounting convention warns the trader should not to take unrealized income into account? कंजर्वेटिज्म में बोलते हैं ना, एक्सपेंसेस तो शो कर दो पर प्रॉफिट्स जो है वो मत शो करो। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक रीजन फॉर कीपिंग एन इन्वेंट्री रिपोर्ट? Then next fifth part में, name the method by which wholesale billing can also be settled. So it is retail billing system. ठीक है, ये इसका आंसर है।
देन 6th पार्ट में आ जाते हैं, हमें चारों में से बताना है विच मेथड इज यूज टू ट्रैक डेली ट्रैफिक इन द इन्वेंट्री. इट इज परपेचुअल. देन 6th में आते हैं, 6 में से 5 करने हैं. हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का है. Dash refers to the stock that was never sold to a customer. It is new old stock and still new in original packing. राइट, कि कभी बेचा नहीं है उस स्टॉक प्रोडक्ट को कस्टमर को, लेकिन है ओल्ड, लेकिन अभी भी वो नया ही लगता है क्योंकि कभी यूज ही नहीं हुआ. सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ POS डिस्प्ले टेबल. FIFO stands for first in first out. Then which one of the following is not the sub feature of shopping cart? SSL security. Fifth पे आते हैं, which of the following is not a method of counting inventory? It is consumable tools. Sixth पे आते हैं, name the term used for running out the inventory of an SKU. तो उसको बोलते हैं हम stock out. Then section B पे आते हैं, subjective type questions हैं, पर ये जो 7 से 11 है बेटा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है और 5 में से आपको 3 करने हैं. हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 मार्क का है. राइट, सो फर्स्ट है आपका, यू हैव टू नेम द 4 स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग. तो पहला है आपका कॉन्टेक्ट, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टिव फीडबैक, राइट, एंड कंफर्म. Then what do you understand by paranoid disorder? Paranoid disorder का मतलब है feeling extremely nervous and worried. Why? Because you believe कि जो other people do not like you. तो or you believe that other people are trying to harm you. So it means feeling extremely nervous and worried. Nervous and worried. Right? Okay. Then question number 9 पे आते हैं, write any 2 features of spreadsheet application. स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में आप ये लिख सकते हो, इधर स्पेस नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लिख सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है. इट बिकम्स फास्टर, एक्यूरेट. ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इट कैन बी हैंडल्ड इजीली. फिर डेटा कैन बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर. तो यू कैन राइट डाउन. देन लिस्ट आउट एनी 2 रोल्स ऑफ ग्रीन जॉब. पहला तो ये है कि इट रीस्टोर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की क्वालिटी रीस्टोर करता है. सेकेंड, इट ऑल्सो रिड्यूस द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ग्रीन जॉब्स का क्या है कि एक तो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट रीस्टोर करता है और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स जो हैं उसको भी रिड्यूस करता है. Then 11th, state some barriers to becoming an entrepreneur. तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल कम है तो भी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, मार्केट एंट्री अगर टफ है, मार्केट एंट्री, मार्केट लिखना था मैंने, मार्केटिंग लिख दिया है, आई थिंक सो. यस, इट इज़ मार्केट एंट्री रेगुलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. 12 to 16 है ये, इसमें 5 में से 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 12, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ POS मार्केटिंग. POS का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग. तो इससे क्या होता है? इट जनरेट प्रोडक्ट अवेयरनेस. तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट होती है. राइट, और कस्टमर जो है प्रोडक्ट को ट्राई भी कर सकते हैं. तो इट लीड्स टू ट्रायल एंड अल्टीमेटली दे विल परचेज इट. तो जब भी कस्टमर कैश काउंटर के पास आते हैं पेमेंट करने, उस एरिया को पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं. वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट रखा होता है न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए, तो प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ती है, कस्टमर ट्राई करते हैं और खरीदते हैं. नाउ एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंटर क्या है? वन स्मॉल प्रिंटर इज यूजली, हम देखते हैं, इट इज एडेड टू द POS सिस्टम. राइट, तो प्रिंटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग सेल्स रिपोर्ट etc. Question 14, give any 2 signs of effective point of sale.
तो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ सेल क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द शॉपर, ठीक है, जो भी कस्टमर है उसकी अटेंशन ग्रैब करता है, अट्रैक्ट करता है। देन इट ऑल्सो डिस्क्राइब कि कैसे कोई आइटम जो है, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द कस्टमर, सो describe the item also. Now what is meant by going concern concept? So going concern concept क्या बताता है, ये assume करता है कि business will continue forever. Forever. What do you mean by fiction map? Fiction map जो होता है एक तरह से physical layout होता है of the store and store all store location. नाउ क्वेश्चन 17 टू 19 में 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क का है। स्टेट एनी 2 पॉइंट ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप राइटर। सो मैग्नेटिक स्ट्राइप राइटर रीडर्स, सॉरी राइटर बोल दिया, रीडर्स ये क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जो होती है ना, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो है, देखो क्रेडिट, सॉरी let me just reframe the answer. Magnetic stripe readers, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आजकल, और क्रेडिट का ये जो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं, कैप्चर करते हैं, ताकि जो सेल्स है वो प्रोसेस हो सके, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो इसको हम MSR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये जो MSR कंपोनेंट है ये अटैच किया जाता है वर्क स्टेशन टर्मिनल में, ताकि कस्टमर जो है वो जब भी कार्ड स्वाइप करता है तो ये MSR जो है उसको इंफॉर्मेशन को उस कार्ड में से रीड करता है और पेमेंट कस्टमर कर पाता है। क्वेश्चन 18, ई रिटेलिंग बेनिफिट्स बोथ द रिटेलर एंड कस्टमर, लिस्ट एनी 6 एडवांटेजेस फॉर रिटेलर्स। तो रिटेलर्स के लिए हमें बेनिफिट बताने हैं कि लोकेशन, देखो ई रिटेलिंग मतलब ऑनलाइन सेलिंग, ठीक है, तो इसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, साइज भी मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन या स्टोर बड़ा है या छोटा है। फिर वेजेस जो है कॉस्ट सेव होती है, लार्जर ऑडियंस वन कैन रीच, इट इज अवेलेबल 24/7, ठीक है, एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन 19, online shoppers commonly use a credit card or PayPal account in order to make payment. List any 6 payment method in e-retailing. तो बहुत सारे मेथड होते हैं, डेबिट कार्ड है, COD है, कैश ऑन डिलीवरी, राइट, चेक से पेमेंट हो जाती है, देन और क्या, गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक मनी है, उससे भी पेमेंट हो जाती है ऑनलाइन, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वाला सेगमेंट आते हैं, 5 में से 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। क्वेश्चन 20, यस, POS is the place where a retail transaction is completed. Write the correct sequence in completing POS activity. ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला स्टेप है इसमें, फर्स्ट इज स्कैनिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है, ये डिटेल वीडियो में मैंने थरली एक्सप्लेन किया, तो उस तरह आप जाकर वीडियो विजिट करके देख सकते हैं। फिर पेमेंट रिसीव होना, रिसीविंग दी पेमेंट्स, ठीक है, बिल प्रिंट होना, प्रिंटिंग द बिल, और यहाँ पे रिसीविंग द पेमेंट्स, प्रिंटिंग द बिल, एंड द लास्ट वन इज कैश ड्रॉ। Then 21, state any 8 rules for cash register security. So इसमें आपको ये लिखना है कि कभी भी कैश रजिस्टर ओपन नहीं करना चाहिए जब भी उसको यूज ना किया जा रहा हो। फिर नेवर फेस अवे फ्रॉम ओपन कैश ड्रॉअर, ठीक है, और स्टाफ कोड किसी को भी नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि रजिस्टर जो है, कैश रजिस्टर लॉक है जब भी आप स्टोर को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी की जो है, never leave the key in unattended cash register, और
नेक्स्ट ये है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जब भी आप कैश रजिस्टर यूज कर रहे हो, एंड never leave the cash lying around. And also when you are talking to the customer or staff while carrying the cash, you should not do that. You should not talk to the customer. ठीक है, क्वेश्चन जब आप कैश कैरी कर रहे हो. ओके, what is bookkeeping is mainly relating to recording of financial data. तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बताना है. बुक कीपिंग का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, राइट. लेकिन अकाउंटिंग में आप सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, यू डू क्लासिफाइंग, समराइज भी करते हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, इंटरप्रिटेशंस करते हो. सो दैट इज द डिफरेंस. 23 अकाउंटिंग इज एन एंशिएंट आर्ट as old as money itself. Justify this statement focusing on its main objective. आपको objectives बताने हैं accounting के. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ताकि प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट हो सके, राइट. एंड फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना बिजनेस की कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 24th, a company operates on a principle of displaying and selling old stock before selling newly acquired stock. तो कंपनी क्या करती है, पहले पुराना स्टॉक डिस्प्ले करती है, बाद में नया वाला, और बाद में नया सेल करती है. सो कंपनी इज रोटेटिंग द स्टॉक बाय पुशिंग ओल्डर प्रोडक्ट फॉरवर्ड वेयर एज शॉपर आर मोर लाइकली टू सी और बाय देम. तो कंपनी पुराने प्रोडक्ट्स पहले डिस्प्ले पे लगाती है. तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, लीफो या फीफो? इट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. एडवांटेजेस क्या है इस वाले फीफो के, कि वेस्ट कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होते हैं. बी पार्ट क्या है, व्हाई इज द कंपनी रोटेटिंग द स्टॉक, कंपनी इसलिए रोटेट कर रही है ताकि इन्वेंट्री वेस्ट ना हो, टू रिड्यूस इन्वेंट्री वेस्ट, राइट. सो जैसे एग्जांपल फूड के केस में होता है, तो इट इज मोर लाइकली टू बी परचेज बिफोर इट गोज बैड. So I'll be coming up with more sample paper for your practice. Till then, stay tuned to my channel.